یہ حالات، یہ مصائب، یہ گرفتاریاں، پے در پہ ناکامیابیاں، جہاں بھی میں دیکھوں اندھیرا بڑا علم جواہرات ایک بہت ہی پیارا علم ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری کامیابی، تعلیم، کاروبار کی پریشانی، شادی شدہ زندگی، پیسے کے مسائل، ریلیشن شپ، لو میرج، محبت کے مسائل، اولاد کی پریشانی، کیا یہی زندگی ہے؟ جاؤں کہاں؟ کیا ہوگا ہماری زندگی کا؟ جاننے کے لیے ماہر جواہرات ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن سے ملاقات کریں۔ راسک جیمز اینڈ جویلرز، بنگلور، حیدرآباد، وجے واڑہ، وشاکھاپٹنم اور دبئی۔ Only one visit can change your life. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ یہ عظیم کائنات حسین بھی ہے اور رنگین بھی۔ حسن و رنگ کے امتزاج سے بھرا کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر قدرت کے عطا کردہ کمالات سے بھرپور ہے۔ کسی ذرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اس فلسفے کو جاننے والے تو بہت سے ہیں، لیکن سمجھنے والا ذہن اور پرکھنے والی آنکھ ہو تو بات بنتی ہے جناب، اور ایسی شخصیتیں برسوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ مبارک ہو آپ کو کہ آج کے دور میں ایسی ہستیاں ہمارے بیچ موجود ہیں۔ نام ہیں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب، راسک جیمز اینڈ جویلرز کے کرتا دھرتا۔ ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ایسی نظر عطا کی ہے کہ جہاں کہیں جب کبھی جیمز کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب کی مہارت کی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ دونوں ماہر جیمولوجسٹ ہیں جو کئی سالوں سے اپنی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ جیسے ایک ماہر ڈاکٹر مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی خصوصیات سے بھی واقف ہوتا ہے، ویسے ہی ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب جیمز کے مزاج کو بخوبی پہچانتے ہیں، اور اللہ نے انہیں وہ علم عطا کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ کون سا جیم کس شخص کے لیے مناسب ہے اور اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ اس راز کی حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں کہ یہ زمین اپنے اندر مٹی اور پتھروں کے ذخیرے کو محفوظ رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کوئی نظرداں آئے اور اس کی گوشت سے پتھروں کے بیچ سے گوہر نایاب کو چن لے اور اللہ کے بندوں کو اس کے استعمال سے فائدہ پہنچائے۔ ڈاکٹر ایم رضا نے یہ کام انجام دیا ہے اور اپنی ماہرانہ خدمات کے سلسلے میں کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ ڈاکٹر ایم رضا نے ہسٹری، لاجک، سائنس اور ریلیجین کے حوالے سے جیمز کے متعلق انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا پاور آف جیمز۔ ڈاکٹر صاحب نے صدر جمہوریہ ہند شری پرنب مکھرجی سے ملاقات کر کے انہیں اپنی کتاب پیش کی۔ اب آپ سب کی دلچسپی کے لیے آئیے آپ کو کچھ خاص باتیں بتائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عوام کو گوہر اور پتھر میں کوئی فرق معلوم نہیں تھا، تو سب سے پہلے میر سکندر علی نے ان گوہروں کو پہچانا اور ان کی خصوصیات سے لوگوں کو واقف کروایا۔ میر سکندر علی کے بڑے بیٹے میر علی بابا نے ضلع اننت پور مدکسیرا تعلقے میں 140 ایکڑ مائنز لے کر اس زمین سے پتھروں کو نکالا، ان پتھروں میں قیمتی گوہروں کی شناخت کی اور ان گوہروں کو اس زمانے میں لندن، فرانس، سری لنکا اور جاپان کو ایکسپورٹ کیا۔ ان کے چھوٹے بھائی ایم حسین نے عام لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے گوہروں کا استعمال کیا اور اس کام کے لیے ایک ریٹیل شاپ قائم کی۔ ایم حسین کے دو لڑکے ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے بھی اپنے پرکھوں کی وراثت کو آگے بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے جیمولوجی میں ڈاکٹریٹ کیا، اور 1990 میں ڈاکٹر ایم رضا اور ڈاکٹر روشن صاحب نے
راسک جیمز اینڈ جویلرز کے نام سے بنگلور میں ایک شو روم کا آغاز کیا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے جنوری 2010 کو شہر حیدرآباد میں بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر ایک اور برانچ کا آغاز کیا گیا، اور یہ افتتاح کافی سرکردہ شخصیتوں کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ ان شخصیتوں میں کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ایچ ڈی کمارا سوامی، سابق سینٹرل منسٹر ڈی پورندیشوری اور ریاستی سابق وزیر مکیش گوڑ اور ایم وینکٹ رامن بھی موجود تھے۔ اور یہی نہیں، تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی صاحب نے بھی ڈاکٹر ایم رضا کی خدمات کو بہت سراہا۔ بنگلور، حیدرآباد، دبئی، وجے واڑہ، تمکور اور وشاکھاپٹنم میں بھی اپنے شو روم کا آغاز کر چکے ہیں، جس کا سابق وزیر اعظم دیوی گوڑا کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا ہے۔ جناب دیوی گوڑا صاحب نے اس موقع پر کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر ایم رضا کے والد ایم حسین صاحب سے متعارف ہوا تو انہوں نے مجھے ایک گوہر عطا کیا تھا، جس کے فیضان سے مجھے کرناٹک اسمبلی کی رکنیت حاصل ہوئی، اور میری ایم حسین صاحب سے محبت اور دوستی بڑھتی گئی۔ اسی وجہ سے میں آج خاص طور پر راسک جیمز اینڈ جویلرز کا افتتاح کرنے آیا۔ یہاں پر بتا دوں، ہر کوئی اپنے مرضی کے مطابق جواہرات نہیں پہن سکتا، ہر کسی کا ذائقہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کا ڈیٹ آف برتھ چاہیے، ٹائم آف برتھ چاہیے، پلیس آف برتھ چاہیے۔ ان تینوں کو لے کر ہم ستاروں کا حساب لگا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا جیمز پہننا ہے، زندگی میں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں، مشکلات کیوں آ رہی ہیں، ٹینشن کیوں آ رہی ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے کون سا جواہرات آپ کے لیے کام کرے گا، انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اگر کسی کے پاس ڈیٹ آف برتھ نہ ہو، ٹائم آف برتھ نہ ہو، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام سے بتایا جا سکتا ہے، ان کی والدہ کے نام کے حساب سے بتایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حساب لگا کر ہم بتائیں گے کہ کون سا جیمز آپ کے لیے مفید رہے گا، زندگی میں خوش رہو گے۔ جواہرات، جس کی تعریف قدرت کرے اسے کہتے ہیں جواہرات، جس کو انبیاء اپنائے اسے کہتے ہیں جواہرات۔ جواہرات جنت کی نعمتوں میں جس کا شمار ہے، دنیا کی نعمتوں میں جس کا شمار ہے۔ اتنا سمجھ لیجئے، روئے زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں، انسان کے کام کے لیے ہیں۔ اسی زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ کا خزانہ چھپا ہوا ہے، انسان کا اپنا خزانہ جیب میں ہوتا ہے، بیگ میں ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، لاکر میں ہوتا ہے، بینک میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خزانہ زمین کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس خزانے سے فائدہ اٹھائیے گا، زندگی میں خوشحال رہیے گا۔ وش یو آل دی بیسٹ۔ ناظرین آداب، میں آپ کا دوست احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جواہرات کا کرشمہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جواہرات کا کرشمہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، کسی بھی طرح کا کنفیوژن ہے، کسی بھی طرح کی مصیبت ہے، کچھ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انٹرویو میں ناکام ہو جا رہے ہیں، سروس کو لے کے پریشان ہیں، سروس نہیں لگ رہی ہے، یا بزنس کو لے کے پریشان ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح کا بزنس کر رہے ہیں، بزنس کرتے ہیں تو ناکام ہو جا رہے ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگاتے لگاتے پریشان ہیں، گھریلو جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پروگرام کی تشکیل دی گئی ہے۔ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور پروگرام میں سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک، کنگ آف جیمز کے نام سے موسوم ڈاکٹر ایم رضا صاحب۔ رضا صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، آپ بھی ڈاکٹر ایم رضا صاحب سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو حیدرآباد کے جو ناظرین ہیں وہ حیدرآباد کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، جو وشاکھاپٹنم کے ناظرین ہیں وہ وشاکھاپٹنم کا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ایوری ویزڈے یعنی کہ ہر 4 شنبے کو صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک ملاقات کر سکتے ہیں۔ جو وجے واڑہ کے ناظرین ہیں وہ ایوری تھرسڈے یعنی کہ ہر جمعرات کو صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 7 بجے تک ملاقات کر سکتے ہیں، اور جو بنگلور یا آس پاس کے اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر روشن صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے نارتھ انڈیا کے خاص کر کے یو پی، بہار، دہلی، ہریانہ، پنجاب وغیرہ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ عنقریب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جلدی ہی ڈاکٹر ایم رضا صاحب دہلی میں اپنا شو روم اوپن کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اسی پلیٹ فارم سے بتایا جائے گا کس ڈیٹ میں شو روم اوپن ہوگا۔ آپ جو ہیں اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہمیں کال کریں تو سب سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا، اپنے بارے میں بات کرنا ہے یا جس کے بارے میں بات کرنا ہے اس کا نام بتائیے، تاریخ پیدائش بتائیے، وقت بتائیے، مقام کا نام بتائیے۔
प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज के पहले कॉलर को। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? रिजवाना बेगम है। रिजवाना बेगम जी, अपनी तारीख पैदाइश बताइए। पैदाइश तारीख कंफर्म नहीं है। वालदा माँ का साहब। नाम जी माँ का नाम जाकिरा बेगम है। जाकिरा बेगम। और एक सवाल है मेरा, जी वो याकूत कंकर कैसा होता है? और वो सुनार दुकान में नकली हो रहता बोल रहे सब जने। नहीं, डॉक्टर और वो एम एम रजा साहब हमारे साथ है। सुनिए, डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकती है, अपने बारे में पूछ भी सकती है। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, कुछ बता रहे, बताइए सवाल क्या है आपका? वो सवाल वो पिछली बार हमारे हस्बैंड के बारे में पूछी थी। वो कंकर सुनारों की दुकान में नकली होता बोल रहे। ओके। वो याकूत कैसे कलर का हो रहता और कहाँ लेना वो? देखिए रिजवाना साहिबा, जैसे कि आपका सवाल है, याकूत को हमने सजेस्ट किया था कहाँ पर लेना है। बहरहाल देखिए, जवाहरात जैसे कि लोगों ने बताया कि मतलब बहुत सी जगह पे डुप्लीकेट्स मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ में डुप्लीकेट बनाई जा रही है। करेंसी नोट्स डुप्लीकेट्स हैं, मोबाइल में डुप्लीकेट्स हैं, वॉचेस में डुप्लीकेट्स हैं। जाहिर सी बात है जो चीज़ की वैल्यू होती है, जिस चीज़ की कीमत होती है, उसी को नकल किया जाता है, उसी की नकली बनाई जाती है। तो जवाहरात नकली बहुत हैं। अब रही बात, याकूत जो होता है लाल कलर का होता है, सुर्ख कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है। लेकिन याकूत देखिए, हर कोई लाल याकूत नहीं होता, क्योंकि जो नकली होता है वो भी लाल ही बनाते हैं। नकली का मतलब क्या होता है? वो भी लाल कलर का ही रहता है। तो सेफ्टी में ख़रीदना है। सेफ्टी में ख़रीदने के लिए हमने पहले ही बताया था, सर्टिफिकेट के साथ ख़रीदना है। सर्टिफिकेट के साथ खरीदने इंशाअल्लाह ताला आपको उसमें कोई मुश्किलात होने वाली नहीं है। दूसरी बात बता दूं, आप जैसे लोगों की आसानी के लिए हमने रास्टिक जैसे ज्वेलर्स कंपनी से दुनिया भर में जो है हमारा जवाहरात का सप्लाई है। आप जहाँ पर भी हैं, चाहे बेंगलुरु का नंबर हो, चाहे हैदराबाद का नंबर हो, चाहे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, जहाँ का भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको नोट कर लीजिएगा। कॉल करने पर इंशाल्लाह ताला आपको अपने मकाम तक इंशाल्लाह ताला पहुँचा दिया जाएगा, क्योंकि हमने आप लोगों के आसानी के लिए ये प्रोविजन भी रखा हुआ है, ये सिस्टम भी हमने बनाया रखा हुआ है दुनिया भर के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया। आप तो बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, मतलब कर्नाटक की बात कर रहे हैं। हम जो बता रहे हैं, दुनिया भर में रास्टिक जेम्स की तरफ से जवाहरात हमने सप्लाई करने का जो है ऑलरेडी हमने बना रखा है। तो हिसाब से आप मंगवा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं रहेंगी, क्योंकि हम जो जवाहरात बेचते हैं एनालाइज करके, प्यूरीफाई करके, दुआओं से इंशाअल्लाह ताला हिसाब से रहेंगे। तो उस हिसाब से आपको अपनाने से क्या है, ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी मिलेगी। तो हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला, और मज़ीद मालूमात आपको मालूम हो जाएगी। बहरहाल जैसे कि आपने कहा, रिजवाना बेगम, माँ का नाम है जाकिरा बेगम। इस नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, दिल की बहुत अच्छी है, हार्ड वर्कर हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, लेकिन 2016 2 साल से बहुत परेशान हैं। अपने आप को अकेला महसूस करना, थोड़ा घबराहट होना, बेचैनी होना, माइंड डिस्टर्ब रहता, सोच कम हो जाती है, परेशान रहते हैं, हौल हैबत होती है। जिसकी मेन वजह है, आपके नाम के हिसाब से अगर देखा जाए, मर्क्यूरी कमज़ोर है। मर्क्यूरी जिसको अतारत कहते हैं, साथ में वीनस भी कमज़ोर है। ये दोनों कमज़ोर होने की वजह से थोड़ा परेशानियां बढ़ी हुई हैं, घर में भी हालात सही नहीं है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफ़ेद पुकराज, वाइट सफ़ेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पे नाज़रीन के लिए छोटा सा मैसेज, जैसे कि उन्होंने कहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारा सजेशन लेते हैं शोज़ वगैरह में, नॉट ओनली ETV उर्दू बोल के नहीं बता रहा हूँ मैं, जो भी चैनल से हम प्रोग्राम देते हैं, बहुत से लोग कॉल करते हैं, तो हम क्या करें, सजेस्ट करते हैं आपको याकूत पहनना है, मोती, पुकरा, जो भी उनके नाम से जो होता है हम बताते हैं वो पहनना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह से ले लेते हैं, पहनने के बाद फिर फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो पहना है, कुछ रिजल्ट नहीं है। आपने कहाँ से खरीदना है? हम घर के सामने कोई एक ज्वेलरी शॉप वाला था, हमने वहाँ से ख़रीद लिया, कोई गोल्ड स्मिथ था, ख़रीद लिया। जैसे अभी वो जो कह रहे हैं, सुनार जो कह रहे हैं ना, गोल्ड स्मिथ कहते हैं, वहाँ से ख़रीद लिया। जाहिर सी बात है, देखिए हर इंसान का काम अलग अलग होता है। जवाहरात के लिए कहते हैं ना, जौहर की कीमत जौहरी जानता है और कोई नहीं जानता, क्योंकि हर लाल याकूत नहीं होता, हर पीला पुकराज नहीं होता, हर नीला नीला नहीं होता। ये हिसाब से
آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ہماری کمپنی سے کیا کیا ہم نے دنیا بھر کا آلریڈی سبھی کو معلوم ہے، جی ہاں، جی ہاں۔ آج کوئی نئی بات نہیں، ہم نے پہلے ہی بتا چکے ہیں، تو یہ حساب سے دنیا بھر میں ہمارا سپلائی ہے، کوریئر کے ذریعے ہم جو ہے بھیج رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں، تو تفصیلات لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے گھر میں پہنچنے تک ذمہ داری ہماری رہے گی، کمپنی کی ذمہ داری رہے گی. مطلب اگر آپ نے ایک بار بک کر لیا کہ آپ کو کون سا جواہر بتایا، کون سا گوہر بتایا ہے، اگر آپ نے ایک بار آرڈر کر دیا، آپ کے گھر پر پہنچنے کی ذمہ داری کمپنی کی ہوگی. جب تک آپ کو نہ پہنچے ذمہ داری کمپنی کی رہے گی. تو اس حساب سے آپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ٹینشن مت لیجئے گا. جو بتا رہے ہیں دیکھیے، اپنا سونا اپنی جگہ خریدیے، اپنی جواہر پہننے کے لیے جویلری کہیں بھی خریدیے، لیکن زندگی میں کچھ بننا ہے، زندگی میں آگے بڑھنا، کیونکہ یہ دنیا تفرقات کی دنیا ہے، فکر مطلب پریشانی کی دنیا ہے، مشکلات کی دنیا ہے، مصیبتوں کی دنیا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے، صحت خراب ہے، کسی کی صحت اچھی ہے، پیسہ نہیں ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہونے کے بعد پریشان ہے، شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے. آج ایک بات بتا دوں، میرے پاس ایک کلائنٹ آئے تھے 2007 میں، ہمارے پاس آئے تھے 2007 میں. انہوں نے ہمیں سروس لی تھی، ہم نے سب بتایا تھا 2014 کے بعد جو ہے تھوڑا شادی میں پرابلم آئیں گے، مشکلات آئیں گے، بہرحال ہم نے پورا لکھ کے دیا تھا اس کو. تو شادی ہو گئی بیچارے کی. جب میرے پاس آئی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی نہیں ہو رہی بول کے مشکلات میں آئے تھے. 2007 ہمارے پاس آئے، 2008 میں شادی ہو گیا ان کا. شادی کے لیے بے قرار تھے، پریشان تھے، شادی کب ہوگی کب ہوگی کب ہوگی. شادی ہونے کے بعد آج وہ بیچارہ کہہ رہا ہے میں نے شادی کیوں کی. ارے بھائی تم اتنے اتاولے تھے کہ شادی کب ہوگی، ڈاکٹر صاحب جلدی کرا دیجئے گا، ہم نے کہا اچھا گوہر دیجیے کہ شادی جلدی ہو جائے. آپ نے ریمیڈی فالو کیا، شادی کے لیے بے قرار تھے. جب شادی ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں شادی میں نے کیوں کیا. کیا کریں ڈاکٹر صاحب، بیوی جب سے آئی ٹارچر ہے، پریشانی ہے، ماں بیوی میں مطلب جھگڑا ہوتے رہتا ہے، میں نہیں دیکھ پاتا، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشن ہے بول. مطلب یہ کیا ہوتا ہے، یہ پہلا ایک زمانہ آتا ہے شادی کے لیے بے قراری تھی، شادی ہونا، شادی کے بعد یہ مشکلات. سب سے بڑی پریشانی کیا ہوتی ہے، ستاروں کی گردش میں آتی ہے. ہم نے پہلے اس کو لکھ کے دیا تھا. میں دیکھیے جواہر جو پہنتے ہیں لائف اسٹونس رہتے ہیں، لیکن اس کو انرجائز کرنا پڑتا ہے 3 سال کے بعد 5 سال کے بعد انرجائز کرنا پڑتا ہے. 2007 ابھی 2018 کتنے سال ہو گیا، تقریباً 9 سال ہو گیا. شادی ہو گئی، بچے سب ہونے کے بعد ابھی مطلب شادی کیوں کی، پریشان ہے بیچارہ. جب ہم نے پورا بتایا تو اپنے آپ فیل کر رہا، میں کاش میں آ جاتا تو میں خوش رہتا، کیونکہ کم از کم 5 سال سے بہت پریشان ہوں. شادی ہونے کے بعد 2 سال زندگی اچھی گزری، 3-4 سال اچھی زندگی گزری، اس کے بعد تھوڑا پریشانی پھنس گیا بیچارہ. تو یہ حساب سے ہر انسان کوئی نہ کوئی مصیبت پھنسا ہوا ہے. کسی کو صحت کی پریشانی، کسی دولت کی پریشانی، کسی کی نوکری کی پریشانی، کوئی کاروبار میں پریشان ہے، کوئی صحت کو لے کر پریشان ہے، کوئی شادی کو لے کر پریشان ہے، کوئی شادی شدہ زندگی کو لے کر پریشان ہے. ان تمام مشکلات سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا راہ حل اسی دنیا میں رکھا ہے. ہم نے بار بار کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے روئے زمین میں انسانوں کے فائدے کے لیے رنگیتے چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال میں لا کر ان نعمتوں کو زندگی میں کام میں لاتے ہیں. قدرت خدا کی بڑی نشانیاں ہیں. اس سے واضح کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل اسی دنیا میں رکھا ہے، ہر مصیبت کا حل اسی دنیا میں رکھا ہے. رکھنے کے بعد انسان کو عقل سے نوازا. عقل کس لیے ہے، انسان سوچے، عقل سے کام لے، تبھی اس کی پریشانی حل ہو سکتی ہے. تو ہمیں چاہیے یہ جو بھی مشکل، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہا نا، نسل حضرت آدم علیہ السلام کو نسل جو ہے ان کو جو ورثے میں ملے، ورثے میں باپ اپنے بیٹے کو پراپرٹی مطلب پراپرٹی دیتا ہے، گھر دیتا ہے، کار دیتا ہے. لیکن انسان کو کیا ملا ہے، پریشانی کے ساتھ کچھ نہیں ملا ہے. ہر کسی کا ماحول ہے، کیونکہ انسان کی زندگی ایک سمندر کی لہروں کی طرح ہوتی ہے. ایک لہر آئی نہیں، دوسری لہر شروع ہو جاتی ہے. ایک مشکل سے بھی باہر نکل نہیں رہے تھے، دوسری پریشانی دکھائی دیتی ہے. سو مطلب کیا ہے، یہ دنیا تفکرات کی دنیا ہے، مشکلات کی دنیا ہے، مصیبتوں کی دنیا ہے، پریشانیوں کی دنیا ہے. اس سے باہر نکلنے کے لیے انسان کو عقل کا استعمال میں لانا ضروری ہے. استعمال میں لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. جب فائدہ اٹھائیں گے زندگی میں خوشی، کامیابی قدم چومے گی. کامیاب انسان وہی ہے جو اچھی سی پلاننگ کرے، سوچ کو آگے بڑھائے. جب تک پلاننگ نہیں کریں گے، سوچ کو آگے نہیں بڑھائیں گے، پریشانی آپ کا مقدر بن جائے گا. آپ کی پریشانی کی وجہ خود آپ بن جائیں گے. تو ہمیں چاہیے باہر نکلنا ہے، مشورہ لینا ہے. پریشانیاں کیوں آ رہی ہے، اسے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیے گا، زندگی میں خوشحال رہے گا. یہاں پہ چھوٹی سی مثال،
इंसान एक घर बनाता है, एक अपार्टमेंट बनाता है, बनाने का इंसान की सोच, एक अपार्टमेंट बनाया, बारिश के सीजन में ड्रेनेज का सिस्टम कैसा होना है, कहीं ऐसा ना हो कि पानी अंदर घुस जाए, पानी स्टॉक हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, मुश्किलात होगी, पार्किंग कहाँ पे बनाना है, कितने कार खड़ाना है, कितने घर बना रहा हूँ, ये है इंसान की सोच। अंदर बनाने के बाद गर्मी का मौसम आएगा, एयर कंडीशन लगाना है, फैन लगाना है, कुछ बात कॉमन एरिया में क्या करते हैं, मतलब जो फायर मतलब आग लगने के बाद उससे सेफ्टी बचने के लिए उसके लिए लगाया जाता है। मतलब इंसान क्या करता है, जब एक छोटा सा घर बनाने के बाद ये तमाम सहूलत फराहम करता है। सोचिएगा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, क्या इसमें हमारे सेफ्टी के लिए कुछ चीजें नहीं है? सोचने का मकाम है। जब हम लोग छोटा सा घर बनाते हैं, छोटी सी कार बनाने के बाद ब्रेक कहां लगाना है, गियर कहां पे डालना है, कैसे आगे बढ़ना है, इंसान की बनाई हुई चीज में सेफ्टी होती है, हर चीज इंसान सोचता है। जब मालिक कायनात अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाई तो इस दुनिया में इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए नेमतें भी फराहम की, निशानियां भी फराहम की। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे परवरदिगार क्या करेगा? बहुत से लोग होते तहज्जुद गुजार, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, फिर परेशान हैं। अरे देखिए आपका सवाब उसका मिलेगा, अजर मिलेगा, लेकिन मुश्किल से बाहर निकलने के लिए एक अच्छी प्लानिंग होना है, अच्छी सोच है, तभी तो जिंदगी कामयाब बन सकती है। तो इससे वाज़ेह क्या होता है, इतनी बड़ी दुनिया में जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात हैं, उसके साथ साथ नजात की राहें भी इसी दुनिया में हैं। तो हमें चाहिएगा अक्ल का इस्तेमाल में लाकर, वही तो बताते हैं ना, देखिए हर चीज में एक माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट क्या करता है, ये चीज में फायदा होने वाला है, ये जवाहरात क्या डॉक्टर इमरान फैमिली बता रही है, क्या हमारे वालिद साहब रिसर्च किए, क्या हमारे दादा रिसर्च किए इसको, मतलब पुरखों से, मतलब हजारों साल से चला आ रहा है। जब हम स्टडी करते, डीप स्टडी करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से भी अंगूठियां पहने जा रहा है, वहां से ज्वेलरी, जेवरात, अंगूठियां, मतलब 2500 साल पहले से भी पहना जा रहा है। लेकिन हमें तारीख में क्या मिलता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी है, तारीख में मिलता है, बाकायदा रिवायत में मिलता है आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, जन्नत से लेकर आए थे। तो ये हिसाब से तमाम अनबिया कराम ने अंगूठियां पहनी, क्या शो के लिए पहने, किसको दिखाना था, कुछ ना कुछ असर था, अल्लाह ताला की नेमत थी। अल्लाह ताला क्या कहता है, हमने दुनिया में कोई चीज अबस पैदा नहीं की मगर ये कि इंसान के काम आए, हर चीज हमारे काम आने के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें चाहिए कि अक्ल का इस्तेमाल में लाएं, अक्ल को इस्तेमाल में लाएं, अल्लाह ताला की निशानियों से फायदा उठाएं, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाएं, जिंदगी खुशगवार बनाएं। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे नाज़रीन को दी और यकीनी तौर पर वो जो है उससे फायदा उठाएंगे। यही इंसान को सोचना है, जब इंसान एक छोटा सा घर बनाता है तो उसकी हर सेफ्टी के फराहम करता है। सही बात, बारिश की सीजन में क्या होना है, हर पहलू को देखता है, हर चीज देखता है। अभी अपार्टमेंट्स होते हैं ना, सेफ्टी देखते हैं, एलिवेटर डालते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं सेफ्टी। तो ये हिसाब से जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई तो हमने पहले ही कहा दुनिया तफक्कुरात की दुनिया, परेशानियों की दुनिया। क्या सिर्फ परेशानियां यहाँ पर हैं? परेशानियां उनके लिए जो अक्ल इस्तेमाल में नहीं लाते। सही बात है, अक्ल का इस्तेमाल जब तक तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करोगे परेशानी आपका मुखतर बन जाएगा, उसके जिम्मेदार खुद हम हो जाएंगे। तो हमें चाहिए आगे निकलना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए राहल बना रखा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? रायचूर शहर, कर्नाटक, रायचूर शहर से बात करें सर। अपने बारे में बात करना है आपको? नाम क्या? मेरी बेटियों के बारे में। मेरे शोहर का नाम मोहम्मद अखलाक हुसैन है, कम से कम 4-5 मरतबा मिले हैं। शोहर का नाम बताइए। शोहर का नाम मोहम्मद अखलाक हुसैन है, 4-5 मरतबा डॉक्टर साहब से मिलकर बहुत फायदा हुआ। मोहम्मद अखलाक? हाँ, मोहम्मद अखलाक हुसैन। मोहम्मद अखलाक हुसैन, उनकी तारीख पैदाइश बताइए। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं, मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब से मिल चुके हैं हम। नहीं, वो मिल चुकी है। जी जी जी, अभी बात कराते हैं। पहले जो है ये बता दीजिए, बेटी के बारे में बात करना है, शौहर के बारे में बात करना है? बेटी के बारे में, छोटी बेटी के बारे में। हाँ, बेटी का नाम बताइए। अनीफा तरन्नुम और मेरा नाम हसीना बेगम है सर। तरन्नुम, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। नहीं है तारीख पैदाइश मेरे शोहर के इसमें है, मैं माँ का नाम बताऊंगी। जी, हसीना बेगम है मेरा नाम। ठीक है। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब आप उनसे बात कर सकती हैं। मोहतरमा सलाम अलैकुम। सलाम, मैं सलाम करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप?
बोसी बहुत अच्छे हैं। जैसे माशाल्लाह। ही हमने आपका प्रोग्राम देखे थे आपके पास, मेरे शोहर को मैं जल्दी भी गई, मैं हैदराबाद को मैं फूले नहीं समारोह प्रोग्राम देखते हो, माशाल्लाह, फायदा हुआ। फायदा हुआ, एक माशाल्लाह। 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां और 1 बेटा है। हाँ, अल्लाह की समझ फजल गया, से समझ गया, बहुत माशाल्लाह, फायदा समझ गया, हुआ। समझ गया। और भी अब भी मिलना चाह रहे थे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, 9th स्टैंडर्ड में है हमदर्द स्कूल में, इंशाल्लाह, बारे इंशाल्लाह। में पूछना चाह रही थी। ओके मोहतरमा, जैसे कि आप पहले आ चुकी हैं, फ़ायदा अभी पहुंचा है। फ़ायदा क्यों ना पहुंचे, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है। ज़ाहिर सी बात है, जवाहरात को नेमत इज़्मा कहा जाता है, तो फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचेगा। आपको तो फ़ायदा मिला है, अल्लाह खुश रखे, इसी तरीके से खुशियाँ आपके घर में रहें। लेकिन अब जैसे कि आपने बेटी के बारे में मुझे जो बताया है, तरन्नुम, माँ का नाम दिया हसीना बेगम। ये बच्ची के नाम से अगर देखा जाए तो बच्ची खुददार है, सेल्फ अर्नर है, खुद जॉब करेगी, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है। ये अच्छी सी खूबियाँ इसके अंदर है। थोड़ा गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शायद टेम्पर है, ज़िद्दी है, जो चाहती है उसको मिल जाना है। ज़िद खराब चीज़ है, ज़िद को कम करना है, लेकिन ज़िद उसके अंदर है, ज़िद्दी ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, शायद टेम्पर भी है। यहाँ पर बता दूँ, बहुत से नाज़रीन देख रहे हैं, गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो इंसान के दिमाग के चराग को बुझा देती है। दिमाग का चराग जब गुल हो जाता है, अंधेरा, समझ में नहीं आता क्या करूं। गुस्से में लोग कह देते हैं ना, उन्हें उसने वो कहा, वो बाद में पछताते हैं, अरे मैं क्या कर दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि चराग जब गुल हो जाए, अंधेरा ही अंधेरा। इसी तरीके से आपकी बेटी के साथ गुस्सा ज्यादा है, जिद्दी है, क्योंकि इनका जो देखा जाए तो लिब्रा, मीजान, वीनस स्ट्रांग, सेल्फ हार्मिंग है, तो गुस्सा के तो मुट्ठियां कस लेना, सामान फेंक देना, सर पे मार लेना, ऐसा मिजाज रहता है। यानी दूसरा देखा जाए सेल्फ अर्निंग है, एक टीचिंग फील्ड में जाने के इम्कान ज्यादा है, अच्छी टीचर बनेंगे। रही बात हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, शादी के खेल थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, शादी में मुश्किलात आएंगे, परेशानी आएंगे। उससे बाहर निकलने के लिए, जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आप बेटी को चाहिए ये एक एमराल्ड पन्ना, कहते हैं जामरुद भी कहा जाता है, 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुखराज 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाएगा। आपको तो मालूम है, ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर चुकी हैं, फायदा भी मिला है। इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से तरन्नुम को फायदा मिलेगा। दोनों बनाइएगा, पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। छोटा सा मैसेज नाज़रीन के लिए, गुस्सा एक ऐसी आंधी है, जुमला दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। कभी भी गुस्सा करना तो याद करना, डॉक्टर साहब ये बताए थे, गुस्सा एक ऐसी आंधी है जो इंसान के दिमाग के चराग को बुझा देती है। अंधेरे में क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गिरे। अभी हम बैठे हैं स्टूडियो में, गुल हो जाए तो क्या होता है, कहाँ जा रहे क्या सामने नहीं पता, जबकि हमें मालूम है, एक्सपर्ट है, डेली आ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन जब अंधेरा छा जाता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे आलम में जब दिमाग का चिराग बुझ जाए, इंसान क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, किससे लड़ रहा है पता नहीं। इसीलिए इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है। मैं मानता हूं कि हर मजहब में होगा, लेकिन इस्लाम में जो गुस्से को हराम करार दिया गया है। जब गुस्सा आ जाए बैठ जाइएगा थोड़ी देर। कहते हैं ना कि सोच को बढ़ाना, जब तक अब सोच नहीं बढ़ेगी छोटी छोटी बातों में गुस्से आएंगे। पार्टनरशिप 20 साल से मजाक कर रहे थे, अच्छी पार्टनरशिप थी, अच्छा पैसा कमा रहे थे, नाम शोहरत कमा रहे थे, गुस्सा आ गया, 20 साल की मोहब्बत को मिनटों में बर्बाद कर दिया जी। उसके बाद फिर जब होश आया, क्या किया पहले सोचना चाहिए था। बहुत से लोग आते हैं, डॉक्टर साहब अच्छे थे, मजे में थे, खा रहे थे, पी रहे, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े बातों में हम लोग झगड़ा कर लिए। अरे भाई गुस्सा इसीलिए कहा जाता हराम है। एक शादी का जोड़ा है, 5 साल से आराम से थे मियां बीवी, गुस्सा आ गया, तू मेरे को नहीं चाहिए, तू मेरे को नहीं चाहिए, गुस्सा कर लिया, बाद में पछतावा शुरू हो गया, मैंने क्या किया, जिंदगी बर्बाद हो गई। पछताना क्यों है, दिमाग से काम लेना है। अगर ऐसी परेशानी है, देखिए गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है उसमें एक जो अनासिर है वो है आग। आग जो होता है गर्मी मिजाज है ना, मेडिकल साइंस क्या कहती है, इंसान के अंदर 98.6 हीट है, एनी टाइम रहता है। अगर हीट कम हो जाए इंसान मुर्दा कहलाता है, तो ये हिसाब से हीट रहती है, तो गुस्सा आता है, जाहिर सी बात है। तो कामयाब इंसान वही है जो गुस्से पे काबू पाता है। एक मिसाल कहते हैं ना, जब गुस्सा आ जाता इंसान वहशी दरिंदा बन जाता है, जब गुस्से को दबा ले फरिश्ता बन जाता है। क्या बात है, छोटी मिसाल है। इंसान के अंदर जानवर की भी सिफत है, फरिश्ते की भी सिफत है। अब पहचाना कैसे है, गुस्सा आ गया, गुस्सा कर लिया, गालियां बक दी, जानवर की मतलब सिफत है। अगर हमने गुस्से पे काबू पा लिया फरिश्ता बन गए। तो हमें चाहिए फरिश्ता बनना है। कौन चाहता है जानवर बनना, कोई नहीं बनना। जानवर में कितने रकम के होते हैं, कौन चाहता है एक अच्छा अशरफुल मखलूकात पैदा होने के बाद
गुस्सा करके क्यों जानवर बनना है? छोटा सा मैसेज है। अगर ये बात अगर किसी 5 लोगों को पसंद आ जाए तो हमारे लिए बस काफी है, नजात के लिए काफी है, क्योंकि फॉलो करना है, क्योंकि इस्लाम में गुस्सा हराम है। बहुत से लोग आते हैं, गुस्से की एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से जिंदगियां बनाया वकील बिगड़ जाता है। पार्टनरशिप में गुस्सा, शादी की लाइफ में गुस्सा, दोस्ती में गुस्सा, हर चीज में गुस्सा कर लेता है। गुस्सा जो है सारे रिश्तों को खत्म कर देता है। पॉलिटिशियंस पर एक मेरे पार्टी की सीट इधर है बोल के छोड़ के आ गया वो मेरे पास आया, बताया डॉक्टर साहब अब कैसे जाऊं, झगड़ा यही कमल झगड़ा करके आ गया हूँ। बोला गुस्सा क्यों किया? नहीं मैं इतने साल से कर रहा था, थोड़ा सब्र से काम लेना है। मैं मिसाल समझाने को बता रहा हूँ, हर फील्ड में गुस्सा आता है, तो हमें चाहिए उस गुस्से पर काबू पाना है, तभी जिंदगी कामयाबी मिलती है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज के लिए, इस पैगाम के लिए। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रामनगर डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बात कर रहा हूँ। अपने बारे में बात करना है? जी जी जी। अपना नाम बताइए। मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नाजिम जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी 11/4/1988। 11/4/1988। वक्त बताएंगे पैदाइश का अपनी? वक्त का तो नहीं मालूम। क्या करते हैं नाजिम साहब आप? अभी तो फिलहाल एजुकेशन कंप्लीट हुई है, अब स्ट्रगल चल रहा है कि कुछ बिजनेस वगैरह देखा जाए, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं रुकावट जैसा मामला जी जैसा। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नाजिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहब्बत है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हमेशा खुश रहो। लेकिन पढ़ाई में बहुत परेशानी उठाई आपने? जी जी जी। पढ़ाई में मुश्किलात आए आपको, बैकलॉग्स रहे, पढ़ाई भी पूरे से नहीं कर पाए आप, जॉब के लिए भी परेशान हो, स्ट्रगल कर रहे हैं, और बिजनेस भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी है इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है जी। एहसास कमतरी। करने से पहले अपने आप सोच लेते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये एक माइंड में फिक्स हो चुका है। दूसरी बात है अल्टरनेटिव सोच ढूंढते हैं। एक काम करते हैं, जैसे वो नहीं होता तो सोचते हैं कि ये एक काम मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए दूसरा काम करे, तो वो सोच लेते हैं हम। तो ये हिसाब से आपका माइंड इधर ही भागता है उधर ही भागता है। कन्फ्यूजन ज़्यादा है, मूड स्विंग्स हैं, टेंशन है, परेशानी, डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, जिम्मेदारी बहुत है, करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ायर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा। पहनने के बाद आपको जो काम करना है, फूड इंडस्ट्री आपके लिए अच्छी फ़ायदामंद रहेगी। मतलब खाने पीने की चीज़ें, किराना की दुकान लगा सकते हैं, रेस्टोरेंट लगा सकते हैं, होटल लगा सकते हैं, बेकरी लगा सकते हैं। खाने पीने की जो भी चीज़ें होते हैं उसका आप कारोबार कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है आपको गारमेंट इंडस्ट्री में, रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं ना, जो कपड़े होते हैं बच्चों का, स्पेशली आपके लिए अच्छा सा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो बच्चों का जो गारमेंट्स होते हैं छोटे बच्चों के, वो भी आप कारोबार कर सकते हैं, या जैसे कि न्यू बर्न बेबी की जो होते हैं ना, उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। ये कारोबार आपके लिए मजीद फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो ये हिसाब से ये जवाहरात पहनने के बाद इस फील्ड में आगे बढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी कदम चूमेगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? थाना बम्बई से बात कर रहा हूँ। अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ हाँ जी हाँ। अपना नाम बताइए। रशीद अब्दुल शेख। रशीद अब्दुल शेख। हाँ। अपने बारे में बात करना है, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। हाँ, माँ का नाम मोमिना है। मोमिना। हाँ। उम्र आपकी तकरीबन कितनी होगी? अभी इस वक्त मेरा 50 है। 50 साल। क्या करते हैं आप? पहले बिजनेस करता था, अभी बंद है जी। और बहुत परेशान हूँ मैं। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे अपने बारे में जान सकते हैं। जी डॉक्टर। मोहतरम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रशीद अब्दुल शेख साहब कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, मैं, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है, लेकिन बचपन से परेशान हैं आप? जी हाँ। आज तक जो भी काम किया उसमें कामयाबी नहीं मिल पाई, हर काम में नुकसानात हैं, माइंड सही से काम नहीं कर पाता, सही से फैसला नहीं ले पाते। आज तक 50 साल हो चुके हैं, आपका मकसद आपको नहीं मालूम, पैसे कमा के क्या करना आज तक नहीं मालूम आपको। जिंदगी में आगे बढ़ना है, मंजिल पर पहुंचना है, तो हमें चाहिए मकसद का तयन करना है, एक एम होना है, बाद में फैसले की सलाहियत होना है। ना आपके पास मकसद है, ना फैसला लेने की सलाहियत है, माइंड डिस्टर्ब, कन्फ्यूजन ज़्यादा, मुश्किलात में फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियां हैं, बहुत करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम पेन है, क्योंकि आपके नाम के और माँ के नाम से अगर देखा जाए तो हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी मोशन की प्रॉब्लम रहेगी, पाइल्स, पिस्टोला या बवासीर जिसको कहते हैं, ये दिक्कत भी आपके अंदर दिखा रही है। इसे बाहर निकलने के लिए नीलम 3 कैरेट का, साथ में एमराल्ड 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, थोड़ा सोच बढ़ेगी, मकसद आएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर इंसान को कामयाब बनना है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा पॉइंट्स भी दे देंगे, बहुत से लोग, करोड़ों लोग जुड़े होते हैं प्रोग्राम के लिए। जब हम एक प्रोग्राम के लिए नहीं आते तो हजारों कल हमारे ऑफिस पे आ जाते हैं, क्या बात डॉक्टर साहब शो में नहीं दिखाई दे रहे हैं या रिकॉर्डेड डाले, तो ये हिसाब से रहता है। बहरहाल अगर कोई काम करना है, चाहे आप नौकरी करो चाहे आप कारोबार करो, सबसे पहले आपको मकसद होना है जी। जब तक आपके पास मकसद नहीं है आप आगे बढ़ने वाले नहीं। नोट कर लीजिएगा, मकसद, एम, मैं नौकरी करता हूं, इतना पैसा कमाता हूं, मैं कमा के क्या करना है। जब तक तुम मकसद नहीं बनाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, मंजिल को तय करना है। नंबर 2 है सही सोचने की, मतलब सही फैसला जी। जब तक आप सही फैसला नहीं ले पाएंगे जिंदगी में कामयाब नहीं बन सकते आप। नंबर 2 जो होता है सही फैसला। नंबर 3 जो होता है स्वीट टॉक, मैनर्स कहते हैं ना, जो अखलाक कहा जाता है, अखलाक आलिया। जब तक आपके पास अखलाक नहीं, हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, अखलाक को अच्छे बनाना है। अखलाक का मतलब क्या होता है, एक बीइंग डॉक्टर का काम क्या होता है, पेशेंट के साथ हंसते से बात करना है, उसकी बातों में मतलब आगे वाले की बीमारी कम हो जाना है 50%। सही। जब मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, हम उनको बात का तरीका अलग होता है, क्योंकि मतलब बहरहाल एक चीज अलग होती है, मतलब बता रहा हूँ, मैनर्स बता रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ मैं, तो बात करने का तरीके में जो है आगे वाले को खुशी मिलना है। हमारे पास जो लोग आते हैं मतलब थोड़ा डिग्निटी मतलब दिखाते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा बड़े मतलब रहते हैं, तो टीवी में दिखाई देते तो आराम से बात करना है, मतलब रहता लोगों का सोच रहता है। जैसे हम फ्रेंडली बात करते हैं दोस्त बन जाते हैं जी, मतलब खुशी मिलती है उनको, मतलब फ्री हो जाते हैं। जब तक तो फ्री नहीं होगे मेरी बात है ना आपको समझ में आएंगे ना, आप मुझे मेरे को बता सकेंगे, सही खामोश बड़े चले जाएंगे, क्योंकि हम थोड़ा टाइम वक्त देते हैं। क्योंकि जिंदगी हमारा जो कैप्शन क्या है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ, इट्स नॉट ए मैटर, इट्स नॉट ए जोक, कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। एक विजिट में इंसान जिंदगी बदलेगा। अल्लाह ताला की जात जो मशवरा मिलता है, जो आपके अंदर ताकतें जो आपको मालूम होती हैं, इतनी मेरे पास ताकतें हैं लेकिन प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। आप नहीं जानते आपकी ताकत क्या है, मालूम है करना है लेकिन नहीं मालूम, जब तक आगे वाला नहीं बताएगा समझ में नहीं आएगा। नंबर जो 3 होता है अखलाक रहना है। नंबर 4 जो होता है भरोसा। कोई भी काम में जब तक तुम आगे वाले को भरोसा नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होता है, अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपकी सूटकेस ऊपर रख देना है। अगर आपने सूटकेस को चेन में हाथ में बांधा, बहुत से लोग होते हैं सूटकेस को क्या करते हैं, चेन और हाथ को चेन बांध देते हैं क्योंकि कोई लेकर जाए, रहता है ना। तो ये हिसाब से वहां पर क्या होता है, लेने के देने पड़ जाते हैं, ना नींद आएगी ना सफर अच्छा गुजरेगा, परेशान अगले बार जाने डरते हैं। तो भरोसा करना है। नंबर 4 जो है अल्लाह ताला की जात पर भरोसा, क्योंकि उसने पैदा किया है। हमने पहले भी कहा था, दरिया के अंदर, पहाड़ के अंदर छोटे सुराख में जो मतलब चरिंद हैं, जो कीड़े हैं, अल्लाह ताला उनको भी ग़िज़ा पहुंचा रहा है। हमने पहले भी कहा था। तो ये हिसाब से अल्लाह ताला राज़िक़ रहीम है, आपके ऊपर रहम करेगा, आपको रिस्क देने वाला वही है, तो भरोसा करना है। जब तक तुम ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी आप फोन किए थे रशीद साहब, इनके अंदर ना मकसद है, ना सही फैसला लेने की ताकत है, ना मैनर्स, मतलब क्या हिसाब से करना समझ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो ये हिसाब से परेशानियां पीछे पड़ जाती हैं। तो आगे बढ़ने की तमाम चीजों को फॉलो करना है। जब तक तुम इसके ऊपर ख्याल नहीं रखेंगे, नौजवान मुझसे लोग देख रहे हैं, सबसे पहले अपना एक एम रखें, एक मतलब एक मकसद तयन करें आप।
एम रखिएगा, एक अच्छी सोच को रखिएगा। जो बोलते हैं ना पॉजिटिव सोच रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। करने से पहले होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ी परेशानी है आप मैदान में उतरने से पहले हार जाएंगे। जी सही। अगर आप सोच लेंगे कि अभी जाऊंगा तो क्या करूंगा, होगा कि नहीं होगा, सोच लेंगे तो आप जाने से पहले हार जाएंगे। तो ये हमें चाहिए कि हिम्मत से काम लें, सही सोचें, ये सब अगर करें इंशाअल्लाह ताला कामयाबी खत्म चूमेंगे इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से मौसूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक डॉक्टर एम रज़ा साहब। रज़ा साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन ब्रेक के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नजमा बोल रही हूँ राजस्थान से। राजस्थान से नजमा, जी। अपने बारे में बात करना आपको, अपने बारे में बात करना आपको। हाँ, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए नजमा साहिबा। ये तो मुझे ध्यान नहीं है। वालदा साहिबा का नाम बताइए। फिरोजा बेगम। फिरोजा बेगम। फिरोजा बेगम। जी जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकती हैं अपने बारे में। जी डॉक्टर साहब। मुहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। सेहत को लेकर परेशान हैं? सेहत को लेकर बहुत परेशान है, कुछ काम नहीं कर रहा। 2014 से सेहत बहुत बुरी चल रही है। कमर का दर्द है, बोन्स की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन ज्यादा है, एलर्जी प्रॉब्लम भी है, हौल हैबत होती है, घबराहट बेचैनी होती है। परेशान तो बहुत हैं, थोड़ा वसवसे भी आते हैं, घर की हालत भी सही नहीं है, सेहत भी खराब चल रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं पुणे से बात कर रही हूँ, मरियम। मरियम, अपने बारे में बात करना आपको? नहीं, मेरे भाई के बारे में पूछना था। भाई का नाम बताइए। आसिफ कयूम पटेल। जी आसिफ कयूम पटेल। आतिफ कयूम पटेल। हाँ। उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 17 जून जी 1998। वक्त बताएंगी उनकी पैदाइश का? सुबह में 8:30 बजे। सुबह में 8:30 बजे। क्या करते हैं आपके भाई? साइबर कैफे में अभी फिलहाल तो सीख रहे हैं जी काम। जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे जान सकती हैं अपने भाई के बारे में। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डेट ऑफ बर्थ दिया 17 तारीख 6 1998। जी जी। सुबह 8:30 बजे। थोड़ा सुस्त रहता है बच्चा, बहुत सुस्त रहता है, लेजी मतलब थोड़ा बहुत सुस्तपना रहता है, और थोड़ा माइंड डिस्टर्ब रहता है, मेमोरी पावर भी कम है, पढ़ाई में नाकाम हो चुका है, बहुत डिस्टर्ब, कंफ्यूजन ज्यादा, जो बताने समझ में नहीं आता, ग्रास्पिंग पावर बहुत कम रहता है, बोलने के बाद 2 मिनट के बाद समझता है। तो ये ऐसा थोड़ा बहुत डल है बच्चा। बच्चे को शानदार बनाने के लिए, चालाक बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकरा 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हमें यहाँ कर्नाटक से बोल रहे हैं। कर्नाटक में कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? जी हमें यहाँ बेलगाम। बेलगाम से। अपने बारे में बात करना है आपको? लड़के के बारे में। हमारे लड़के का नाम बताइए। मीजान। 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 उनकी तारीख पैदाइश? 14/11/1986। 1986। वक्त है 1 o'clock 1:15 रहेगा मेरे ख्याल से। PM या AM? दोपहर में या रात में? नाइट में। नाइट में। हाँ जी डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहती हैं बेटे के बारे में? बात कर सकती जी डॉक्टर साहब। हाँ। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत तो खुश है हम तुमसे बात करके। अल्लाह तुमने आला दर्जा दे। तुम्हारा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। देखो शुक्रिया 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 आपकी मोहब्बत का। आपने जो बेटे का डेट ऑफ बर्थ दिया है, बच्चा बहुत चालाक है, हेल्पिंग नेचर, हार्ड वर्क, लेकिन थोड़ा गुस्से का मिजाज, जल्दबाज, शॉर्ट टेम्पर,
किसी की बात नहीं मानता, शादी को लेकर परेशान, काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हेल्थ के हिसाब से अगर देखा जाए लेफ्ट साइड में हेडेक रहता है, हर 15 दिन में सर का दर्द आते रहता है, थोड़ा माइग्रेन भी है। इसे बाहर निकलने के लिए आपके बेटे को चाहिए कि याकूत रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। कश्मीर से कौन सा आप बात कर रहे हैं? मुजफ्फर अहमद। मुजफ्फर अहमद, अपने बारे में बात करना मुजफ्फर साहब। जी अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। जी मालूम नहीं, अलबत्ता नाम है, माँ का नाम है हाजरा। हाजरा, क्या करते हैं आप? जी ऐसे ही ठेकेदारी कर रहा हूँ। ठेकेदारी कर रहे हैं। जी डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? आप बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं क्या रजा साहब दिल्ली कब आ रहे हैं? सलाम अलैकुम मुजफ्फर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। आप कैसे हैं मेरे भाई? बस जी ठीक ठाक, आप सुनाओ, आप ठीक हो? कुछ बोल रहे थे आप? जी दिल्ली कब आ रहे हो आप? इंशाल्लाह ताला दिल्ली बहुत अनकरीब आने वाला है, विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म से अपडेट बताएंगे आपको, क्योंकि काम मुकम्मल हो चुका है, थोड़ा टेक्निकल काम बाकी है और थोड़ा ऑफिशियली का वर्क बाकी, क्योंकि वहाँ पे लाइसेंस भी लेना है, ब्रांच खोल रहे हैं ना। इंशाल्लाह ताला विद इन वीक में हो जाएगा, इंशाल्लाह विद इन 10 डेज में आने वाले हैं। मुजफ्फर साहब, जैसे कि आपने अपना नाम दिया मुजफ्फर, माँ का नाम है हाजरा, ठेकेदारी करते हैं लेकिन 2014 के बाद कर्जे में डूबे हुए हैं, पैसा पूरा अटका हुआ है, सही से दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, कमर का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम दिखा रही है। इसे बाहर निकलने के लिए, फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, सेहत को अच्छी बनाने के लिए आपके लिए चाहिए कि येलो सफर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में याकूत 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। दिल्ली वालों इंशाल्लाह ताला, जो सराउंडिंग में बहुत से लोगों के कॉल सभी आ रहे हैं, क्योंकि हम 1 महीने से बता रहे हैं ओपन होने वाला है, तो उनके लिए बता दें काम मुकम्मल हो चुका है। जी विद इन 10 डेज मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला, 10 से 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आने से पहले बता दें कब आने वाले हैं, तो हिसाब से मतलब आप फायदा उठा सकते हैं, मशवरे ले सकते हैं, जिंदगी कामयाब बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू। ये हालात, ये मसाइब, ये गिरफ्तारियां, पे दर पे नाकामयाबियां, जहाँ भी मैं देखूं अंधेरा बड़ा इल्म जवाहिरात एक बहुत ही प्यारा इल्म है। ये जिंदगी के हर शोबे, हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी कामयाबी, तालीम, कारोबार की परेशानी, शादीशुदा जिंदगी, पैसे के मसाइल, रिलेशनशिप, लव मैरिज, मोहब्बत के मसाइल, औलाद की परेशानी, क्या यही जिंदगी है? क्या होगा हमारी जिंदगी का? जानने के लिए माहिर जवाहिरात डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन से मुलाकात करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, बेंगलोर, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम और दुबई। Only one visit can change